Hello, my dear students. In all defects, today we will discuss last defect, that is impurity defect. See our textbook next topic regarding conduction means electrical conductivity is based on impurity defect, but impurity defect is not clearly given in our textbook. So I am explaining you completely the impurity defect first, how impurity is added. See, if we add little amount of SrCl2. SrCl2 is a strontium plus 2 in molten NaCl. And once again this crystal with SrCl2 impurity is crystallizes. Then one Sr2 plus enter, it replaces two Na plus ions. Okay. If one Sr2 plus enter, then is replaces two Na plus ion, and this Na plus 2 ion leave the crystal and it combine with this Cl2 and this NaCl is released. So when one Sr2 plus is enter in the crystal, so 2 Na plus means two vacancies are created. So in one vacancy of Na plus, that is occupied by Sr2 plus, and this is called impurity. Okay, that we are adding, and another Na plus remains vacant. See here in this crystal, this is the NaCl crystal in which when one Sr2 plus is added as impurity, so it's leave here in place of Sr2 plus Na plus was present. So when one Sr2 plus added, it released two Na plus. When two Na plus released, then at one place Sr2 plus occupy and another one place of Na plus is remain vacant. So here the cation vacancy is due to the impurity added. Okay, if impurity is added having plus 1, then only 1 is released and that place occupied, so vacancy is not created. So always impurity added having higher charge than the positive ion present in the crystal. Okay, uh, so one thing is clear, if one Sr2 plus is added, then one vacancy is created. If two Sr2 plus is added, then two vacancy created. If three Sr2 plus added, then three vacancy created. So the conclusion is number of cation vacancy is equal to number of Sr2 plus ion added. Okay, and other example also you can explain by taking the crystal of AgCl. Take crystal of AgCl and add in it the CdCl2 impurity. So this AgCl leave by adding one Cd2 plus, two Ag plus leave the crystal, and one place occupied by this Cd2 plus and another remain vacant. Okay, so these two are the well-known examples, and by this example one important problem here you have to solve. So let us solve one problem. Okay, see here on your screen, this problem is already given backside in our exercise. We have one NaCl crystal, and adding of impurity is in a scientific language called doped. It is added by 10 raised to minus 3 mole percent SrCl2. Then find out how much cation vacancy produced. So you have to find how much Sr plus 2 plus added. And number of Sr2 plus added we can find, then that number equal to nothing but vacancies of cation. Okay, so first find out the moles of Sr2 plus. So mole percentage given here. So first you have to convert it into mole by dividing 100. So 10 raised to minus 5 mole SrCl2 added. So find molecules of SrCl2. Actually Cl2 not added, Sr2 plus added. So number of Sr2, once mole is find out. So find out number of Sr2 plus ions. How many moles? 10 raised to 5 minus 5 mole. So multiplied by Avogadro number, you can find the number of Sr2 plus ions. So these are nothing but the number of Sr2 plus ions. See, 6.023 multiplied by 10 raised to
28. Avogadro number you can use 6.022 also. Okay, in some book used 023 and majority book used 022. So once SR2 plus ion calculated, then number of vacancy equal to SR2 plus ions. Okay, solved. Very easy problem. This type of problems also you are asked in competitive exam also. So write down below this theory, this problem, write down this problem which is given in backside exercise. Okay, not extra problem. It is already NCERT exercise problem. Is it clear? Now, after discussing the all defects and one numerical based on that defect, the lesson enter into second last phase, that is the electrical properties of solid, and then after the last phase, that is magnetic properties of solid, then lesson will be over. This is a very easy lesson and scoring lesson so far as the competitive exam is concerned or board exam is concerned. Okay, so first you have to classify the solids based on electrical conductivity. So how electrical conductivity is there? So you know some points regarding electrical conductivity which we discussed in equilibrium, which we discussed in redox reactions also. But here based on physical term, if the conductivities solid exhibit conductivity range between 10 raised to minus 20 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse. This is the physical unit of conductivity that is already there in electrochemistry. So based on conductivity, solids are classified into three categories. You know very well, this is the easiest theory of this chapter: conductors, semiconductors and insulators. So we have to classify based on these conductivities, okay, which conductivities gives conductors, identifies as a conductor, semiconductor and insulators. Okay, so you have to remember the value asked in objective in boards exam, not in competitive exam. Okay, so those solid whose conductivity is 10 raised to 4 to 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse, they are called conductors. They are called good conductors. Okay, and the solids having maximum 10 raised to 7 ohm inverse meter inverse conductivity, they are called good conductors. And as we move 10 raised to 7 to 10 raised to 4, their conductivity slowly decreases, and then after considered semiconductors. If the conductivity is maximum 10 raised to 4 and minimum 10 raised to minus 6, means between these two, okay, because 10 raised to 4 is there, then they are considered conductors, means between these two ohm inverse meter inverse, then they are called semiconductors. And last one, and here most important thing, in semiconductors conductivity is increases by adding defects. If you if impurity is added or any defect is present, so defects are not defects are good in solid. If crystal is 100% pure, then there is no use of that crystal, उसका कोई यूज ही नहीं होगा. Defects are good, or if defects are not present, then defects created by adding impurity, so that the conductivity of semiconductor increases. So in all electronic devices we are using PNP diode, rectifiers, they are nothing but the semiconductors with impurity. And last one is the insulators, means like a rubber, wood. Okay, so the solids having the conductivity between 10 raised to minus 20 to minus 10 ohm inverse meter inverse, यहाँ तक की कंडक्टिविटी है तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे. इसकी कंडक्टिविटी नहीं के बराबर है तो वुड, रबर, प्लास्टिक. ठीक है, तो इसमें थोड़ा कुछ ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव, हालांकि बुक में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पूरा आपको, हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मेटल ही कंडक्टर होते हैं, मेटालिक वायर ही कंडक्टर होते हैं, लेकिन आज की डेट में कुछ क्राइटेरिया, ये सॉलिड का नॉलेज हमने, ये जो है 21st सेंचुरी का, कि
इम्प्योरिटी ऐडेड करके कंडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। तो आज की डेट में मेटल की जगह पे कुछ मेटल ऑक्साइड्स यूज़ कर रहे हैं हम, जैसे कि टिटानियम ऑक्साइड, क्रोमियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, rhenium trioxide. So these metal oxide shows conductivity like metals. तो आज की डेट में मेटल्स बहुत कॉस्टली पड़ रही है, तो इसकी जगह पे अगर हम इस मेटल के ऑक्साइड यूज़ करते हैं तो भी इक्वल कंडक्टिविटी मिलती है। और उसमें एक तो बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड अपीयर लाइक अ कॉपर एंड इट्स कंडक्टिविटी ऑल्सो लाइक अ कॉपर। तो कॉपर बहुत कॉस्टली पड़ता है आज की डेट में, तो उसकी जगह पे आप रेहनियम ऑक्साइड का यूज़ करेंगे तो उसका जो अपीरियंस है और उसकी कंडक्टिविटी है वो कॉपर के जैसी है। ठीक है, तो पॉइंट खास नोट करके लिख लीजिएगा। और कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे बेस होती है। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है, टेम्परेचर कम होता है तो वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। तो जिसकी कंडक्टिविटी टेम्परेचर के हिसाब से चलती है, ठीक है, तो वो ऑक्साइड्स है टिटानियम ट्राइऑक्साइड, वेनेडियम डाइऑक्साइड, वेनेडियम ट्राइऑक्साइड, VO2 V2O3। अब देखिए टिटानियम और वेनेडियम के ऑक्साइड में कंफ्यूजन हो सकता है, ये दोनों की कंडक्टिविटी, ये दो वेनेडियम ऑक्साइड और यहाँ भी टिटानियम वेनेडियम का ऑक्साइड है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे मार मार खा जाते हैं कि ये अब क्या करें। ठीक है, तो ये देखिएगा कि ये मोनोऑक्साइड है दोनों, द लाइक कंडक्टिविटी लाइक मेटल, दोनों मोनोऑक्साइड है। और मोनोऑक्साइड के अलावा और कोई ऑक्साइड्स आता है तो आपको सिलेक्ट करना है कि कंडक्टिविटी बेस्ड ऑन। और देखिए टिटानियम और वेनेडियम के ही ऑक्साइड है, बाकी कोई नहीं। और कुछ ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो द बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स। ओके, उसकी कंडक्टिविटी नहीं है, तो जहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हमें इंसुलेटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम इंसुलेटर में कॉस्टली मटेरियल की जगह पे, कॉपर मेटल कॉस्टली है, कॉपर का ऑक्साइड कॉस्टली नहीं है, वो और में से मिल जाता है ना। तो मैंगनीज मोनोऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन, फेरस ऑक्साइड, दीज ऑक्साइड्स आर इंसुलेटर। आप कोई भी टेम्परेचर रखिए। तो अब जो हमारा क्वेश्चन है, दिस वन इज द इम्पोर्टेंट। यहाँ पे मैंने क्लासिफिकेशन और इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक समझा दिया। तो दो क्वेश्चन खत्म हुए, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है दो तरह से, मेजोरिटी एक्सप्लेन द कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स, ये क्वेश्चन ऐसे कम पूछा गया है, लेकिन मैंने लिखा है बुक के टाइटल के हिसाब से। ये क्वेश्चन ऐसे ज़्यादा पूछा गया है कि एक्सप्लेन बैंड थियरी, एक्सप्लेन बैंड थियरी इन मेटल। तो आप जरा नोट भी कर लीजिएगा कि ये बैंड थियरी ऑफ मेटल है, इससे हम कंडक्टिविटी बहुत आसानी से समझा सकते हैं। ठीक है, तो ये थियरी स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने ज़रूरी है। एक तो ये कि कंडक्टिविटी का कंसेप्ट क्या है, ये जो साइड में है वो आपको पहले नोट करना है। अगर मेटल है तो मेटल की कंडक्टिविटी ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हम लेते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस। मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड एज वेल एज इन अ मोल्टन फॉर्म। मेटल कोई भी सूरत में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन या तो उसके मोल्टन स्टेट में ही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दिखाएगा। लेकिन द चैप्टर इज अ सॉलिड स्टेट, सो यू हैव टू कीप इन माइंड फर्स्ट टू पॉइंट्स, सॉरी ये दिस टू येलो कलर पॉइंट, that is about metal. ओके, मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन बोथ फॉर्म, सॉलिड में है, सॉलिड वायर में कंडक्टिविटी होती है, या तो वो मोल्टन स्टेट में हो। ठीक है, तो अब हम कंडक्शन सॉरी अब हम लोग जो बात करेंगे वो ये बैंड थियरी के बारे में बात करेंगे। इतना कंसेप्ट है आपको। तो कंडक्टिविटी के दो पॉइंट्स आप जरा देख लीजिए कि कंडक्टिविटी मेटल में क्यों होती है, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है। तो एक बात है कि जैसे ही जिस मेटल में मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसमें मोर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सोडियम में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक सोडियम एक ही फ्री करेगा, एल्यूमिनियम में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो तो 3 फ्री करेगा। ठीक है, और हमने मेटालिक प्रॉपर्टी में ये भी स्टडी किया है कि मेटल्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मेटल्स आर लूजली कंबाइंड विथ न्यूक्लियस।
तो कंडक्टिविटी मोर आएगी। जिस मेटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। और दूसरा पॉइंट ये देखना है कि जितने लूज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ कनेक्टेड है उस हिसाब से वो ज़्यादा फ्री होंगे। तो एक एटम का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, अब 11th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट आ गया। इस एटॉमिक ऑर्बिटल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने एटम एक मेटल में होते हैं? लाखों करोड़ों मेटल होते हैं, एटम होते हैं मेटल के। तो वो सब एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंबाइंड कर होके मोलेकुलर ऑर्बिटल बनाती है। ये एओ मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल, एमओ मीन्स मोलेकुलर ऑर्बिटल, ये कोई ऑक्साइड नहीं है। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड कर होके एक लंबा सा बैंड बनाती है। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक, ये मैं बॉक्स दिखा रहा हूँ, ये सब एटॉमिक ऑर्बिटल है। सबके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक एटम की एक ऐसे हजारों एटम की हजार एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होगी। ओके। और दो सब जो एटॉमिक ऑर्बिटल है एक ही टाइप के या तो नबरिंग एलिमेंट के, कोई कुछ इम्प्योरिटी है तो सब में एनर्जी में डिफरेंस नहीं होगा, तो सब कंबाइंड हो जाएगी मेटल में। और वो एक ऐसा ऐसा पट्टा, मतलब कि ऐसा रोड फॉर्म करेंगी जिसको हम बोलेंगे बैंड्स। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, कुछ वैकेंट भी होंगी, है ना। हम बोलते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन है लेकिन इसमें ये 3D वैकेंट है, 4D वैकेंट है, 5D वैकेंट है, ऐसा पी ब्लॉक में बोलते थे। तो वो भी, अब ये जो कंबाइंड हो गए वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाले तो कंडक्शन सॉरी ये वैकेंट ऑर्बिटल भी कंबाइंड होगी, तो ये भी एक बैंड फॉर्म करेगी। तो दो बैंड मेटल में होते हैं। एक बैंड ऐसा जिसमें सब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके वैलेंस बैंड बनाती है, और दूसरा बैंड जो है वो सब एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कंबाइन करके, और दोनों के बीच में कुछ गैप होता है, ठीक है, इन मेटल। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड थियरी है, इज इट क्लियर, और मॉडर्न थियरी है। तो ड्यू टू दिस टू टाइप्स ऑफ बैंड्स आर फॉर्म्ड। जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और वो कंबाइन होकर एक लंबा बैंड बनाती है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। और जिस एटॉमिक ऑर्बिटल के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, वैकेंट है, ठीक है, वो भी कंबाइन हो जाती है वो पहले वाली को देख के, और एक दूसरा बैंड बनता है कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड को हम सीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, वैलेंस बैंड को हम वीबी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, ताकि ये लंबा लिखना ना पड़े। तो जैसे कंडक्शन बैंड जो है वो वैकेंट होता है, वैलेंस बैंड जिसमें सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते हैं। अब कंडक्शन बैंड जो है वो हायर एनर्जी लेवल पे होता है, और वैलेंस बैंड जो है वो उसके रिस्पेक्ट में लोअर एनर्जी लेवल। तो मानो कि ये एक बैंड है, ये एक दूसरा बैंड है, ठीक है, दोनों के बीच में कुछ गैप रहते हैं। अगर अगर मेटल्स बहुत ही अच्छा कंडक्टर है तो ऐसे दोनों ओवरलैप भी रहते हैं, दोनों के बीच में गैप नहीं भी होता है। तो दोनों के बीच में जो गैप है एनर्जी लेवल का, मानो कि ये एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ये जो गैप है दोनों बैंड के बीच में, ये नीचे ऑलवेज वैलेंस बैंड ही रहेगा, ऊपर ऑलवेज कंडक्शन बैंड ही रहेगा, क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ड्यूरिंग कंडक्शन, अब इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं। अगर वैलेंस बैंड में से कंडक्शन बैंड में इजीली जंप हुआ तो वो गुड कंडक्टर है, डिफ़िकल्ट जंप हुआ तो सेमीकंडक्टर है, जंप ही नहीं कर पाए तो वो इंसुलेटर है। तो यहाँ पे मैंने वो भी लिखा है कि एनर्जी गैप किसको कहते हैं, ये ईजी का मतलब है एनर्जी गैप। दोनों के बीच में जो गैप है, द गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड एनर्जी गैप ईजी। तो गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं? तो एनर्जी गैप जिसमें बहुत लेस होता है, तो जंप लगाना इजी, मानो कि दीवार छोटी है तो हम इजीली कूद के जा सकते हैं ऊपर, ठीक है। अगर थोड़ी बड़ी है तो कुछ कोशिश करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए, लेकिन ऊपर चढ़ जाएंगे दीवार के ऊपर और टेरेस पे चले जाएंगे। अगर बहुत लंबी दीवार हुई और स्टेयरकेस नहीं है तो हम बोलेंगे कि यहाँ ऊपर जाना नामुमकिन है। तो हम, कोई अगर एनर्जी भी दे, हमको मोटिवेट करे कि नहीं तू जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि नहीं नहीं भाई,
हाथ पैर नहीं तोड़वाने, मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन भी वैसे सोचते हैं इजीली जंप हो सकता है तो जाएंगे। अब देखते हैं कि डिफ़िकल्ट, कोई हीट करके, कोई बाहर से एनर्जी गेन करके जंप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जंप करना वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, वही कंडक्टिविटी है। हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और आज तक क्या पढ़े हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं और वन डायरेक्शन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, ठीक है। दैट इज द कंडक्टिविटी कंसेप्ट। लेकिन आज का मॉडर्न कंसेप्ट ये नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहे हैं। हर एक मेटल में और हर एक कंडक्टर में, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है उसमें दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्टिंग कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो ये आज का मॉडर्न कंसेप्ट है। तो हम लोग अब फिर से क्लासिफिकेशन लेंगे। गुड कंडक्टर्स जैसे कि सभी मेटल, ठीक है, तो एनर्जी गैप या तो वेरी लेस होगा या तो होगा ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप इजीली फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, तो दे आर द गुड कंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर में क्या होगा, जैसे कि मेटलॉइड, सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो एनर्जी गैप स्लाइट मोर देन द कंडक्टर्स। कंडक्टर जो अच्छे हैं उससे एनर्जी गैप ज़्यादा होगा। तो एंड द दिस गैप इज लेस देन द इंसुलेटर। तो इलेक्ट्रॉन सोचेगा कि मैं जंप लगा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई मोटिवेट करे, अगर कोई मुझे एनर्जी दे तो मैं जा सकता हूँ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर चला गया तो वो सेमीकंडक्टर दिखाएगा, अगर नहीं जा पाया तो वो इंसुलेटर कहलाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। कहाँ जंप करना है? वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड में जंप करना है। तो अगर उसको एनर्जी मिल गई तो वो जंप कर पाएगा, ठीक है। अब ये इंसुलेटर, उसमें पॉसिबल ही नहीं है, आप चाहे कितना भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दो, क्योंकि इसमें लार्ज एनर्जी गैप होता है। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जितना एनर्जी गैप ज़्यादा होगा, जैसे कि रबर में, प्लास्टिक में, वुड में, ग्लास में, है ना, तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इवन इफ एनर्जी इज गेन। अब आप बोलेंगे कि सर आप बोले ही जा रहे हो, अब कुछ कोई डायग्राम ऐसा दिखाओ कि हमें पता चले, ठीक है। तो ये देखिए आपके सामने डायग्राम कलरफुल तीनों के लिए। ये पहला है वो मेटल के लिए, देखिए ये ऊपर वाले बैंड जो है वो कंडक्शन बैंड है, ठीक है। नीचे वाले जो सब बैंड है वो वैलेंस बैंड है। अब देखिए मेटल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये जो आपको ग्रीन कलर जैसा दिख रहा है, यहाँ सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कंडक्टिविटी के दौरान इसको यहाँ जंप लगाना होता है, यहाँ से यहाँ जंप लगाना होता है। और ये यहाँ तो दोनों के बीच में कुछ है ही नहीं डिस्टेंस, तो मतलब मैंने बोला है कि या तो एनर्जी गैप नहीं होता है मेटल में, या तो बहुत ही स्मॉल होता है। ऐसा भी होता है मेटल में, जैसे कि ये कंडक्शन बैंड है और ये वैलेंस बैंड है, तो ये एनर्जी गैप बहुत ही स्मॉल होता है, तो उसमें कोई वो नहीं है, इलेक्ट्रॉन इजीली उसके पास जो एनर्जी है उससे जंप लगा के जा सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मेटल में है ही नहीं, ये मैंने बोला था इससे, ये एनर्जी ऊपर कंडक्शन बैंड की एनर्जी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि कंडक्शन बैंड की एनर्जी जो है वैलेंस बैंड से ज़्यादा ही होती है। तो एमओ डायग्राम देख लो, एमओ डायग्राम में जो फील्ड हो जाते हैं सब, वो नीचे से फील्ड होते हैं। तो जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो एनर्जी लेवल नीचे ही आता है, जो वैकेंट रहती है वो ऊपर ही रहती है ना। वही एटॉमिक ऑर्बिटल मोलिकुलर ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रही है एमओ डायग्राम में। और हमने ये भी पढ़ा है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, आप याद करिए। यही मोलिकुलर ऑर्बिटल यहाँ अब इकट्ठी हो रही है और एक पूरा रोड बना रही है जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। और ऐसा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सभी सॉलिड में होता है, लेकिन ये बहुत काम आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को समझाने के लिए। अब देखिए सेमीकंडक्टर है, गैप थोड़ा ज़्यादा है, तो एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को तो ये जंप कर पाएगा। तो थोड़ी कुछ कंडक्टिविटी दिखाई देगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो ये सेमीकंडक्टर है, हालांकि इतने बड़े नहीं है। यहाँ देखिए वेरी लार्ज एनर्जी गैप है, तो आप यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इसकी चाहे जितनी भी एनर्जी दो तो ये ऊपर जंप नहीं करेगा। तो इस थियरी के एंड में आपको ये तीनों डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये जो बैंड है इसलिए इसको बैंड थियरी भी कहा जाता है। तो आपको फिर से मैं यहाँ पे याद दिला दूँ, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि एक्सप्लेन
बैंड थियरी, explain band theory for conductivity of metals, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल की कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए ये बैंड थियरी है। ठीक है, तो बैंड थियरी पूछे तो भी यही आंसर लिखना है। अगर आपको यहाँ पे ये वाला मतलब कि ये क्वेश्चन पूछे तो भी यही थियरी लिखनी है जो मैंने आगे दिया है, एक्सप्लेन द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स। तो इसका मतलब भी यही हुआ कि आपको बैंड थियरी से इसको समझाना है। इज इट क्लियर? So after discussion of this band theory, the important thing here, my friends, is the conductivity is increases. अब इसमें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? जैसे कि गुड कंडक्टर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये गुड कंडक्टर है, लेकिन जो गुड कंडक्टर बाय नेचर होता है बहुत कॉस्टली होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा है वो सर्च एरिया है, कि जो भी सेमीकंडक्टिविटी दिखाता है अगर उसके अंदर हम कोई कुछ ऐसा करें, ठीक है, ताकि इसकी कंडक्टिविटी, ये खुद जो बाई बर्थ कंडक्टिविटी दिखाता है जैसे कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है और कोई सेमी मेटल है, तो उसकी बाई बर्थ जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती है, तो इसको हम बोलते हैं उसकी खुद की कंडक्टिविटी, और साइंटिफिकली हम बोलेंगे इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। अब इस इंट्रिंसिक में हमें थोड़ा बाहर से कुछ करके बढ़ाना है, एक्सट्रिंसिक थोड़ा डालना है। तो जो कंडक्टिविटी इसकी बाई बर्थ है सिलिकॉन जर्मेनियम की वो बहुत कम है, प्रैक्टिकल यूज में नहीं आ सकती। तो इससे भी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पे मैं आने वाला हूँ कि हम सिलिकॉन जर्मेनियम की कंडक्टिविटी इम्प्योरिटी ऐड करके, इसलिए तो मैंने इम्प्योरिटी का पूरा कंसेप्ट लिया है, इम्प्योरिटी को ऐड करके, ठीक है, हम कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज कर सके ताकि इसका हम प्रैक्टिकल यूज़ कर सके। अब ये तो भाई साहब कोई काम का ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो कुछ भी करेंगे कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं मार रहे हैं। अब यहाँ जंप मार रहे हैं तो कुछ, अब लड़का कुछ काम कर रहा है तो हम मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब वो बोल ही रहा है कि मैं काम नहीं ही करूँगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, तो ये सब इंसुलेटेड है। अब कुछ नहीं कहना पड़ता है और फिर भी अच्छा काम करता है, ये ऐसा है जैसे काम आया सीधा बैठ गया सब कुछ खत्म कर दिया। अब कुछ जो है ऐसा करते हैं कि भाई हो हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कुछ एनर्जी मिली, किसी ने बोला कि चल भाई कर ले ये हमारे लिए अच्छा है, तो उस वो बैठ गया और 1-2 घंटे काम कर लिया। तो अगर इसको आप हम लोग मोटिवेट करते ही रहेंगे तो वो काम कंटिन्यूअसली करता रहेगा। तो क्या करना पड़ेगा, उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो कुछ ऐसा करना होगा इसके अंदर कि जिससे ये इलेक्ट्रॉन बढ़ जाए, और ये इलेक्ट्रॉन, पहले तो हमें इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है कंडक्शन वैलेंस बैंड में, और यहाँ इजीली जंप लगा सके, ऐसा भी कुछ करना है। इस प्रोसेस को साइंस में कहते हैं डोपिंग, डोपिंग करना होगा। और आप फिजिक्स में पढ़ते हो ट्रांजिस्टर एक चैप्टर आता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये दोनों ट्रांजिस्टर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप कोई भी ले लो, कंप्यूटर, टीवी, ठीक है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक डिजिट्स गैजेट्स सॉरी, सब में ये रहता है। तो हमारा अब जो है टॉपिक वो ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ सेमी मेटल, उसके अंदर हमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन बढ़ाना है बाय डोपिंग, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? पहले देख लेते हैं इसके रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चन है तो वो सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। See, my dear friends, here this problem is not related to our today's topic, but one is remaining. So let us solve. आज के टॉपिक का एक प्रॉब्लम है, लेकिन पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये फेरिक ऑक्साइड है, फेरिक ऑक्साइड का मतलब हुआ Fe2O3, ठीक है। तो फॉर्मूला तो है ही यहाँ, वैसे तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े हुए हैं इसलिए पता है उसको। ये फॉर्म करता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, लेकिन हमें ये सॉलिड स्टेट मेथड से ही करना है। हेक्सागोनल क्लोज पैक फॉर्म करता है, तो
उसमें क्या दिखाया है कि ऑक्साइड जो है वो 3 ऑक्टाहाइड्रल होल में से 2 को ऑक्यूपाई करता है, एक वैकेंट छोड़ देता है। Fe3 प्लस आयन, Fe3 प्लस आयन जो है, थोड़ा प्रॉब्लम समझिएगा, अच्छा कॉम्पिटिटिव प्रॉब्लम है। Fe3 प्लस आयन वो 2 ऑक्टाहाइड्रल वॉइड आउट ऑफ 3 ऑक्यूपाई कर रहा है। So first find out in this one is hexagonal closed pack, so number of spheres are 6 in hexagonal. Okay, so one thing is clear, oxygen form a hexagonal, so oxygens are 6 and Fe3 plus. So first find out the octahedral void. Octahedral void also 6, number of spheres equal to octahedral void. Octahedral void 6 means Fe2 plus Fe3 plus occupy 2 spheres, 2 octahedral void out of 3 out of total 6, ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। फिर से मैं बोल रहा हूं कि Fe3 plus occupy 2 octahedral void out of 3 from total 6, ऐसे सीधा आप कर सकते हो। तो टोटल कितना आएगा इसका, Fe3 plus 4 is equal to 4। तो आपके पास आया Fe3 plus 4 एंड ऑक्सीजन 6। तो फॉर्मूला ऐसे हुआ Fe4O6, 2 कॉमन निकालो तो आ गया Fe2O3। ठीक है, इट इज अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम, इज इट क्लियर। तो और एक प्रॉब्लम है जो आज की थियरी के रिलेटेड है, जो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सी ऑल दिस प्रॉब्लम ऑलरेडी गिवन बैक साइड इन एक्सरसाइज, जो कुछ पुरानी थियरी के रह गए हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक बीच में प्रॉब्लम आया है कि हमको गोल्ड दिया है यहाँ पे एंड इट्स एटॉमिक रेडियस, गोल्ड की जो एटॉमिक रेडियस है ये है 0.114 और एफसीसी में वो क्रिस्टलाइज हो रहा है। तो आपको लेंथ फाइंड करनी है सॉलिड, मतलब कि आपको क्या फाइंड करना है, एज लेंथ ए। तो अब एफसीसी की एज लेंथ ए का फॉर्मूला है आपका ए इज इक्वल टू 2√2r। अब थियरी जो हमने वो किया था ना, वो कौन सी थियरी थी, पैकिंग एफिशिएंसी वाली, तो उसमें हमने एज लेंथ का फॉर्मूला डिराइव किया है ए 2√2r। आर आपके पास है नैनोमीटर में, नैनोमीटर में रखिए तो एज लेंथ आपकी आएगी नैनोमीटर में। अगर आप इसको पिकोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एज लेंथ आपकी आएगी पिकोमीटर में। अगर आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो एज लेंथ आपकी आएगी सेंटीमीटर में, वो आपकी मर्जी, सॉल्व है नैनोमीटर में। ओके, जिसमें पूछा होगा उस यूनिट में आपको कन्वर्ट करना है। ये फॉर्मूले सब आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है वो आज के थियरी के रिलेटेड है। आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू बैंड थियरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर। बहुत ही इजी थियरी है, बहुत ही इजी है। कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। तो आपको पता है कि कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या फ़र्क होता है। कंडक्टर में ये बैंड जो है दोनों या तो ओवरलैप होते हैं या तो एनर्जी गैप इज़ वेरी वेरी लेस होता है। इंसुलेटर में क्या होता है, एनर्जी गैप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब वही कंडक्टर और सेमीकंडक्टर के बारे में बोले तो उसमें जो एनर्जी गैप है, ये कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। एनर्जी गैप जो है वो मेटल से ज़्यादा होता है लेकिन इंसुलेटर से कम होता है। देखिए इसमें क्या लिखा है, एज पर द बैंड थियरी फॉरबिडन गैप between valence and conduction band in insulator is very large, while in conductor the band either overlap मीन्स नो एनर्जी गैप और आप थोड़ा ऐड कर लेना कि वेरी वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, कभी कभी कुछ मेटल में स्मॉल एनर्जी गैप रहता है। अब कंडक्टर और सेमीकंडक्टर की बात करें तो वही हुआ ना, कंडक्टर में एनर्जी गैप या तो वेरी वेरी स्मॉल या तो नहीं होता है, ओवरलैप होती है दोनों बैंड्स। ओके, और सेमीकंडक्टर में क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, स्मॉल किससे, इंसुलेटर से। लेकिन
कंडक्टर से ज़्यादा होता है। तो ऐसे आप मत लिखिए, आपने जो समझी है थियरी उस हिसाब के आंसर, इसकी कॉपी मत करिए। आप जो अंडरस्टैंडिंग आपने अभी अभी मैंने जो आपको समझाया, द थियरी आई एक्सप्लेन्ड यू, तो आपकी लैंग्वेज में आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये कॉपी नहीं करना है, ये तो लिखने में टाइम जाता है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, है ना। कॉपी नहीं करना है, आपकी लैंग्वेज में लिखो। और आपको पूरी थियरी समझ में आ गई है, तो अब आप लिखो कि ये दोनों में आप बैंड के हिसाब से क्या फ़र्क देखते हो, और दोनों में बैंड के हिसाब से ये कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में क्या फ़र्क देखते हो, और कंडक्टर इंसुलेटर में क्या फ़र्क देखते हो, ठीक है। लास्ट डायग्राम से सीधा आंसर आ रहा है। चलिए, और कोई प्रॉब्लम है तो देखते हैं, वरना लेक्चर फाइंड अप करेंगे, ठीक है। See, another one question is there in backside exercise that explain F center. तो वो तो थियोरी में ही हमने समझा दिया है कि एफ सेंटर क्या है। जो एनायन अपनी जगह छोड़ जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं अपने लवर्स के पास, ठीक है। एक नया आके बैठता है ऊपर, तो उनको वो पुराना अपना हस्बैंड को छोड़ के वो नए के पास जाते हैं, और जो प्रॉपर्टी है वो वहीं पे लेफ्ट कर जाते हैं, और वही प्रॉपर्टी वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होती है। दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट एफ सेंटर्स। ओके, ऐसे मत लिखना कि हस्बैंड को छोड़ के जाती है, आपको साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। See, this one is another problem in backside exercise, that is the aluminium crystallizes in cubic close pack. प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया है और इजी भी है। आप पहले क्रिस्टल को पकड़ लीजिए, क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर, रेडियस भी है 125 पिकोमीटर। तो आपको दो क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। तो एज लेंथ का फॉर्मूला सीसीपी, सीसीपी मतलब कि एफसीसी। तो एफसीसी का एज लेंथ का फॉर्मूला है 2√2r। आर पिकोमीटर में रखेंगे तो एज लेंथ पिकोमीटर में आएगी। ये रहा प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अब एज लेंथ आपके पास है तो वॉल्यूम फाइंड कर लो। वॉल्यूम एक क्यूब फाइंड करना है तो वो सेंटीमीटर में फाइंड करना है, ठीक है। पहले पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, फिर वॉल्यूम फाइंड करो। तो वॉल्यूम आपका आएगा 354 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर में आएगा 10⁻⁻30। तो ये हुआ सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पूरा वॉल्यूम है यूनिट सेल का, ठीक है। तो आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितने ऐसे सेल आ सकते हैं, ठीक है। कितने ऐसे सेल आ सकते हैं। ये कैसा हुआ कि मेरे पास इतना रूम है, ठीक है, और एक एक बॉक्स है मेरे पास। इस बॉक्स का वॉल्यूम ये है, रूम का वॉल्यूम ये है। तो एक रूम में इस ये रूम का जो वॉल्यूम है, इसमें इस वॉल्यूम के कितने बॉक्स आ सकते हैं। तो ये है आपका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम। डिवाइड कर दो तो कितने यूनिट सेल आप इतने वॉल्यूम में फिट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ईजी है। So my dear friends, in next lecture we will discuss about the intrinsic conductivity of semiconductors, and उसमें कुछ डोपिंग करके करेक्शन, मतलब कि उसकी जो कंडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। और वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी, तब बाद में लास्ट टॉपिक बचेगा, एंड दैट वन इज़ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक सब बाकी है, क्यों डिफ़िकल्ट तो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि इसमें सॉलिड में हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।